Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is fiber to fabric, and the things we will learn are animal fibers, story behind discovery of silk, health hazards in wool and silk industries. Now in the previous class we studied about the plant fibers cotton and jute. Plant fiber cotton is generally used to make clothes while jute is used in other purposes. Although cotton is a good fiber, but only cotton is not able to fulfill all the requirements of clothing. For example, during winter we need a fiber which keeps us warm. Similarly, for parties and functions we like to wear lustrous clothes. So wool and silk fibers are able to fulfill these requirements. Wool is a natural fiber which is used to make sweaters, shawl, pullover, etc. while silk is a shiny fiber which is an excellent dress material. तो जो हम कपड़े पहनते हैं वो या तो प्लांट फाइबर से मिलते हैं या एनिमल फाइबर से मिलते हैं। अब हमने पहले की क्लासेस में कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा था। जो कॉटन है उससे हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। जब सर्दियां आती हैं तो हमें ऐसा फाइबर चाहिए जो हमें गर्म रखे, और अगर कहीं पार्टी या फंक्शन में जाना है तो कुछ ऐसे कपड़े चाहिए जिनमें शाइन हो। तो वूल एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जिससे कि हम स्वेटर, शॉल वगैरह बनाते हैं। ये हमें गर्माहट देता है या गर्म रहने में हेल्प करता है। और सिल्क एक ऐसा फाइबर है जिससे का जो फैब्रिक बनता है वो थोड़ा शाइनी होता है और उससे बहुत अच्छी सी ड्रेसेस बन सकती हैं। सो लेट अस लुक एट दी animal fibers. Fibers obtained from animals are called animal fibers. Wool is obtained from sheep and from special species of goat, rabbit and camel, while silk is obtained from silk moth. Obtaining fibers from animals is not as simple as it seems. In fact, it is a multi-step process which starts from breeding of these animals. So let us discuss about these fibers. तो वूल और सिल्क दो ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें नेचुरली एनिमल से मिलते हैं। अब शीप, गोट, रैबिट, कैमल, इन सब से हमें वूल मिलते हैं, और सिल्क मॉथ नाम का इतना छोटा सा जानवर होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है। और सबसे पहला स्टेप हमें एनिमल फाइबर्स ऑब्टेन करने का क्या है कि आप एनिमल्स को पालें और उनकी देखभाल करें। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी वूल. This animal fiber is chiefly obtained from the sheep. However, special breeds of animals like goat, camel and rabbit are also used for obtaining wool. Therefore, these animals are called wool yielding animals. तो वो animals जिनसे हमें wool मिलती है उन्हें wool yielding animals कहते हैं। अब ये क्या है? sheep है, goat है, camel है, rabbit है। Now, wool yielding animals have thick coat of hair on their body. This coat is called fleece, which protects them from cold. Wool is obtained from fleece of these animals. इन जानवरों की बॉडी के ऊपर बहुत एक मोटी लेयर होती है इनके बालों की। इन बालों की कोट को जो इनके बॉडी के ऊपर होती है उसको फ्लीस कहा जाता है। सर्दियों में ये इन एनिमल्स को ठंड से बचाते हैं और इन्हीं से हमें वूल मिलती है। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट वूल फ्रॉम शीप. More than 95% of the wool production worldwide comes from sheep. Australia, New Zealand and China are leading commercial producers of wool. World's finest wool is obtained from merino sheep that belongs to Spain. In India, sheep are reared in the hilly regions of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. तो wool ज़्यादातर हमें 95% जो पूरे विश्व में sheep से मिलती है। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना जो हैं ये लीडिंग कमर्शियल प्रोड्यूसर्स हैं वूल के, और जो फाइनेस्ट वूल है वर्ल्ड की वो मेरिनो शीप से मिलती है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हिली रीजन्स हैं जहाँ पे शीप पाली जाती हैं ताकि उनसे वूल हमें मिले। नाउ इन द फॉलोइंग टेबल some Indian breeds of sheep are given. So we look at these breeds are Lohi, Bakrawal, Rampur Bushehr, Patanwadi, Nali, Marwadi. And the quality of wool that we get from them are, we get superior wool from the Lohi sheep, then woolen shawls from Bakarwal, then brown fleece from Rampur Bushehr, hosiery wool from Patanwadi, and then carpet wool from Nali sheep, and coarse wool from the Marwadi sheep. Now, selective breeding is the process of selecting parent sheep for obtaining special characteristics in their offsprings. So, let us look at now wool from other animals. शीप के अलावा कैमल, रैबिट, गोट या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है. Now following are the different types of wool obtained from these. So first of all, let us look at the pashmina.
ये हमें कश्मीरी गोट से मिलती है। इसका जो फाइबर है वो कश्मीरी गोट के बालों से मिलता है। ये गोट बहुत ही हायर प्लेटूज जो हैं चाइना, मंगोलिया और तिब्बत में, वहाँ पे ये वाली गोट्स मिलती हैं और इनका जो फाइबर है ये बड़ा ही सॉफ्ट और वार्म है और ज़्यादातर इनसे पश्मीना की शॉल्स बनती हैं। नेक्स्ट वी हैव दी मोहेयर। ये हमें अंगोरा गोट से मिलती है। ये जो है बहुत ही स्मूथ, ड्यूरेबल, लाइट और गर्म रहने वाले फाइबर्स हैं। इनसे लेडीज़ के स्वेटर्स बनते हैं या फिर जो फर्नीचर के ऊपर की सॉफ्ट कवरिंग्स हैं वो बनाई जाती हैं। इंडिया में अंगोरा गोट जो है वो जम्मू और कश्मीर में मिलती है। देन वी हैव दी अंगोरा वूल। ये हमें अंगोरा रैबिट से मिलती है। ये बहुत ही लाइट और सॉफ्ट किस्म की वूल होती है। इनसे स्वेटर्स, मिटन्स या फिर बेबी क्लोथ्स बनाए जाते हैं। देन वी हैव द कैमल वूल। जो कैमल के नीचे की तरफ के जो बाल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनसे हमें ये कैमल वूल मिलती है। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसका बहुत ही एक नेचुरल ब्यूटीफुल कलर होता है। द बेस्ट कैमल वूल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल्स फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ साइबेरिया एंड मंगोलिया। हालांकि जो विकुना, लामा और अल्पाका हैं ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं कैमल्स की जो एंडीज़ माउंटेन्स में मिलती हैं और इनको भी यूज़ किया जाता है। वूल इनसे जो मिलती है वो बहुत ही फाइन, सॉफ्ट और लाइट होती है और उसमें बहुत चमक भी होती है। देन वी हैव द याक वूल। Yak usually shed their soft under hair annually, which is gathered and spun into yak wool. Yak are generally found in Tibet and Ladakh. Now let us look at the production of wool. A series of processes are involved in the production of wool. These are discussed as follows. First is shearing. अब शेयरिंग वो प्रोसेस है जिससे कि शीप या एनिमल की बॉडी के ऊपर का फ्लीस निकाला जाता है। अब शीप को जब एक बार आप स्प्रिंग में उसका फ्लीस निकाल देते हैं तो वो उसके बाल धीरे धीरे दोबारा से ग्रो कर जाते हैं और विंटर्स में उनकी बॉडी पूरी ही बालों से ढक जाती है जो उस एनिमल को फिर ठंड से बचाती है। अब शेयरिंग आप हाथ से बड़े बड़े रेजर्स लेकर के कर सकते हैं या फिर एक ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन आती है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। अब इससे शीप को या जानवर को कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि सिर्फ उनकी बॉडी के ऊपर के बाल ही निकाले जाते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ स्काउरिंग। अब जो बाल निकाल दिए गए हैं उनके अंदर बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि सैंड, डर्ट, ग्रीस वगैरह, तो इनको अच्छे से धोया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको स्काउरिंग कहा जाता है। अब स्काउरिंग जो है मशीन की हेल्प से करी जाती है और फ्लीस के अंदर जो ग्रीस होती है जिसे कि लैनोलिन कहा जाता है वो इस प्रोसेस में निकाली जाती है। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग। इस प्रोसेस में जो स्टेन्ड या फिर डैमेज्ड या इंफीरियर क्वालिटी की वूल होती है उसको निकाल के अलग कर दिया जाता है और जो बाकी की वूल जो अच्छे वाली है उसको उसके फाइबर की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली डिवाइड करके स्टोर किया जाता है। अब कौन सी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि इनके फाइबर्स कितने ज़्यादा फाइन हैं, उनकी लेंथ कितनी है और उनको डाई करने की कैपेबिलिटी है या नहीं। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ कार्डिंग। इस प्रोसेस में वूल को रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है। इन रोलर्स में बड़े पतले वायर्स के टीथ जैसे बने होते हैं। इनसे क्या है कि जो फाइबर्स हैं वो एक फ्लैट शीट जिसको कि वेब कहा जाता है उसमें अरेंज हो जाते हैं। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ डाइंग। The natural color of fleece is black, brown or white, so the fibers are dyed in different colors. Then comes the process of spinning. जो फाइबर्स को डाई कर दिया गया है उनको फिर लंबा किया जाता है, सीधा किया जाता है, उनको कोम किया जाता है और फिर यार्न में रोल कर दिया जाता है। The longer fibers are spun into wool for knitting sweaters and other woolens, while the shorter fibers are woven into woolen clothes. Now let us look at silk. Silk भी एक एनिमल फाइबर है। It is also known as the queen of textiles. The best known type of silk is obtained from cocoons made by the larva of mulberry silk or Bombay mori. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. तो sericulture में silkworms को पाला जाता है ताकि उनके cocoon से हमें silk मिल सके. Now let us look at the life cycle of a silk moth. The life cycle of a silk moth undergoes the following stages. First is the egg clusters. जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एक फीमेल सिल्क मॉथ 300 से 400 एग्स एक टाइम पे ले करती है। इन एग्स में से लार्वा हैच करते हैं जिनको कि कैटरपिलर्स या फिर सिल्कवर्म्स कहा जाता है। द नेक्स्ट स्टेज इज कैटरपिलर्स।
ये जो कैटरपिलर्स हैं ये रात दिन खाना शुरू करते हैं, इनको मलबरी लीव्स के ऊपर रखा जाता है जिन्हें ये खाते हैं। When they are about 35 days old, they are 10,000 times heavier than when they were hatched. They grow rapidly, reaching the size of ring finger. तो जब तक ये 35 डेज के होते हैं ये अपने वेट से बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं जब इन्होंने हैच किया होता है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ प्यूपा और कोकून। अब ये जो कैटरपिलर्स हैं ये अब प्यूपल स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये खाना छोड़ देते हैं। अब इनके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनमें से एक लिक्विड सिक्रीट होता है, बड़ा ही स्टिकी सा लिक्विड होता है जिसमें कि प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रोइन कहा जाता है। ये जो लिक्विड है ये इस कैटरपिलर या सिल्क वर्म के इर्द गिर्द आसपास एक केस बनाता है। ये लिक्विड जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है और इस केस का जो आउटर पार्ट है ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, जबकि जो इनर वाला पार्ट है उसमें बड़े महीन से धागे होते हैं जो 1000 फीट तक लंबे होते हैं। Now this stage is called pupal stage and the ball-like structure formed by the thread is called cocoon. Once the cocoon is completed, silkworm goes into a resting period for 2 to 3 weeks. Next is the stage of silk moth. 2 से 3 हफ्ते के बाद जो बीच में यंग सिल्क मॉथ तैयार हो चुका है वो अपने कोकून को ऊपर से काटता है और बाहर आ जाता है। Just now look at the प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क जो है कोकून स्टेज में निकाला जाता है, क्योंकि अगर सिल्क वर्म्स को अलाउ कर दिया जाए कि वो मैच्योर हो जाएं तो वो कोकून को ऊपर से काट देते हैं जिससे कि सिल्क का फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ टसर, मूगा, कीसा ये सिल्क की अलग अलग वैरायटीज हैं। नाउ लेट अस लुक एट rearing of silkworms. For obtaining silk, healthy silk moths are chosen for breeding and laying eggs. अब अगर आप हेल्दी सिल्क मॉथ्स चूज़ करेंगे तभी तो वो अच्छे एग्स ले करेंगे और उनमें अच्छे कोकून्स बन सकेंगे। एग्स जब हैच होते हैं तो जो लार्वा हैं उनको बड़ी बड़ी ट्रेज में मलबरी लीव्स के ऊपर रख दिया जाता है। फिर ये 20 से 35 दिन तक खाली लीव्स को खाते ही रहते हैं कंटिन्यूसली डे एंड नाइट। फिर जब ये खाना छोड़ देते हैं तो इनको बैम्बू चेम्बर्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे इनके लिए छोटे छोटे से रैक्स बनाए जाते हैं जो कि ट्विग्स वगैरह से बनते हैं। यहाँ पे जो कैटरपिलर्स हैं अपने आप को इन ट्विग्स से अटैच कर लेते हैं और इनके आसपास कोकून्स ये बनाने शुरू करते हैं। अब ये जो स्पिनिंग का प्रोसेस है कोकून बनाने का ये 3 से 7 दिनों तक चलता है। इसके बाद जो है इन कोकून्स में से सिल्क मिलनी शुरू हो जाती है। जो कोकून्स को रेज किया जाता है इन कोकून्स को फिर फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पे इस सिल्क को अनवाइंड किया जाता है इन कोकून्स में से। सो फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। फर्स्ट इज द sorting cocoon. So according to color, size, shape and texture cocoons are sorted. इनका शेप, साइज, कलर, टेक्सचर क्या है उस हिसाब से इनको अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है। कोकून्स के कलर्स जनरली वाइट, येलो या फिर ग्रेइश होते हैं। देन इज सॉफ्टनिंग द सेरेसिन. In silk filament, 2 strands are held together by a sticky substance called sericin or silk gum. For this, cocoons are immersed in boiled water and then in cold water. This kills the worms and loosens the filaments. तो cocoons को पहले उबलते हुए पानी में और फिर ठंडे पानी में डिप किया जाता है। इससे क्या है कि अंदर के वर्म्स मर जाते हैं और जो इनके फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो लूज हो जाते हैं। Now it is a fact about 5,500 silkworms are killed to produce 1 kilogram of silk. Next comes reeling the filament. अब इस प्रोसेस में जो सिल्क के फिलामेंट्स जो खुल गए होते हैं उनको रील किया जाता है और एक फिलेचर में बनाया जाता है। जो रिजल्टेंट फाइबर ऑब्टेन होता है उसको रॉ सिल्क कहा जाता है। इसको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। इसको फिर आप इन फाइबर्स में से थ्रेड्स बनाते हैं जिनसे फिर आप सिल्क का कपड़ा बुनते हैं। नाउ थिंक, व्हाई डू कैटरपिलर्स नीड टू शेड थिन स्किन व्हेन दे ग्रो बिगर? नाउ लेट अस लुक एट दी health hazards in wool and silk industries. Workers who sort wool are often attacked by a bacteria causing a fatal disease, anthrax. This disease affects lungs, skin, intestines of its victims. This bacteria enters into the worker's body through inhaled air.
Nowadays, vaccines are available for this disease. Common health issues in sericulture are respiratory problems like asthma and bronchial infections. These diseases are caused by inhaling the vapors of boiling cocoons. Along with these diseases, burns and blisters are very common in the workers as they continuously work with boiling water. तो जो वर्कर्स वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको एंथ्रैक्स होने का खतरा रहता है. आजकल जो है इसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं. और जो सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर उनकी स्किन्स में जलने वलने का खतरा रहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पानी में काम करते हैं. नाउ लेट अस लुक एट दी स्टोरी बिहाइंड डिस्कवरी ऑफ सिल्क. सिल्क जो है चाइना में 6000 साल पहले डिस्कवर हुआ था. अब सुनने में ये आता है कि एक लेडी सी लुंग ची थी जो 14 इयर्स की ब्राइड थी एम्परर हुआंग ती की. अब उनको येलो एम्परर भी कहा जाता था. तो कहानी ये है कि एक दिन अराउंड 2640 BC ये जो रानी है ये मलबरी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, चाय पी रही थी. तो ऊपर से एक कोकून इनके कप में आके गिरा. तो इन्होंने नोटिस करा कि उसमें से बहुत ही डेलिकेट फाइबर्स जो हैं वो खुलने शुरू हो गए जो इनकी चाय में गिरे थे. अब इसको जब उन्होंने अलग अलग करा तो उससे उन्हें सिल्क के थ्रेड्स या फाइबर्स मिले. Now let us take a quick recap. Wool and silk are natural fibers obtained from animals. Wool is obtained from sheep, goat, rabbits, camel. These animals are called wool-yielding animals. Now the production of wool involves various steps of shearing, scouring, grading, carding, dyeing and spinning. Silk is obtained from the cocoons of silk moth. A silk moth goes through various stages in its life cycle. These stages are egg cluster, pupil, cocoon and silk moth. For producing silk, cocoons are sorted and boiled. After that, silk fiber is unwound by the process of reeling. Many health hazards are associated with the people working in wool and silk industries. So I hope that this chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will now be easy.